Hello and very good afternoon to all of you. And we are discussing the series of our NCERT books, and we are discussing the history. And today we are on the chapter number 3, and the topic is the Delhi Sultans. Right? Earlier in chapter number 2, what we have discussed, how the uh, the claims of Rajputas declined, and afterwards how an invader came in India known as Muhammad Ghori, and how he defeated the Prithviraj Chauhan, and it began or it symbolizes the history of the slave dynasty in India, right? So it's a quick recapitulation. What we have learned yesterday was that, as we have started earlier, this place is known as Kannauj, right? And to capture the Kannauj, three powers, that is the Pratiharas, the Pals, and the Rajput, struggled to gain or to capture the Kannauj. In later phases, we have seen that the Pratihars got the victory and controlled the Kannauj, right? And afterward, we have seen that there are so many Rajput rulers were also there. Some was in Delhi, Tomar, in Ajmer, Chauhans, in Gujarat, Solanki, in MP, Chalukya, right? In later phases, this Chauhan dynasty captured this Delhi, right? And what has happened that an invader known as Muhammad Ghaznavi came to India and looted Somnath temple of Gujarat. And later phases, we have seen that Muhammad Ghori was also an invader and came to India, and in the reign of the Chauhan Rajputs, he came to India, right? And the two battles were fought between Muhammad Ghori and Prithviraj Chauhan, and those battles were known as the Battle of Tarain first and the Battle of Tarain second, 141191, right? In the very first battle, Prithviraj Chauhan defeated Muhammad Ghori, and in the next one, Muhammad Ghori defeated the Prithviraj Chauhan. And when he defeated Prithviraj Chauhan, he went back to his place by looting or by plundering the whole of the Delhi dynasty. But his slave, he left his slave in India, and that particular slave known as Qutbuddin Aibak, and this Qutbuddin Aibak has formed or put a stone of the new dynasty that was the slave dynasty, right? So this slave dynasty was the beginning or some mark of the new dynasty, that is the new class or new kind of power that is known as Delhi Sultanate, right? तो हमने यहाँ तक की बातें अपनी हमारी जो पिछली क्लासेस है वहां तक हमने कर ली है, वहां तक हमने समझ लिया है, राइट? अब इसके अलावा हमने ये भी समझा था कि जब ये सारी चीजें हो रही थी, जब स्लेव डायनेस्टी बन रही थी, या जो मोहम्मद गोरी जब इंडिया आ रहे थे, या इंडिया के उन्होंने जो भी इतनी सारी प्लांटरी की थी, उसी समय पे ये जो आपका सदर्न इंडिया है, वो उस पार्ट में भी कुछ कुछ लेटर चेंजेस हो रहे थे। जैसे यहाँ वाला जो प्लेस था, यहाँ पे थे सातवाहन, और इन सातवाहनों को रिप्लेस कर दिया था राजपूत ने, राइट? इस वाले प्लेस पे जो थे वो थे आपके पल्लवा डायनेस्टी, और इन पल्लवों को रिप्लेस किया था आपके चोलाज ने, राइट? तो चोलाज डायनेस्टी के बारे में चैप्टर 2 में जो भी डिटेल्स थी वो पढ़ना रह गया था, और उसको हम लेके आज आपका चैप्टर नंबर 3 में चोलाज डायनेस्टी का जो चैप्टर नंबर 2 का रिमेनिंग पार्ट है वहां से शुरू करने जा रहे हैं। अब हमने इसके अलावा एक चीज और समझी थी, and what was that thing? That was the feudal lords. What was the feudal lords? कि जब जो बादशाह थे, जो सुल्तान होते थे, वो क्या करते थे, लोगों को सैलरी देते थे, है ना? और जब सैलरी देने में कुछ प्रॉब्लम्स इमर्ज हुई उस समय की इंडिया में, कि the king has not enough money to give the salary to his एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि लैंड ग्रांट्स देने शुरू कर दिए। जैसे मान लीजिए पूरा होल इंडिया है, अब यहाँ पे जो किंग है उसकी सुप्रीमेसी में थोड़ा सा लैंड यहाँ पे ग्रांट कर दिया, इसको दे दिया, तो ये लोग क्या हो जाएंगे। अब इस लैंड ग्रांट का मतलब था कि इस पर्टिकुलर प्लेस से जो भी रेवेन्यू होगा उसको आप कलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करके यू विल हैव टू गिव दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स टू द किंग, और जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका होगा, राइट? तो ये वाली जो सिस्टम थी इसको हम कहते हैं फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम या सामंती सिस्टम।
लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि जब इस तरीके से आप लैंड ग्रांट्स देते रहेंगे दूसरे दूसरे अदर अदर लोगों को, उससे क्या होगा कि द पावर ऑफ द किंग विल डिक्रीज और डिमिनिश। धीरे धीरे क्या होगा कि जो किंग की पावर है वो कम होने लगेगी, है ना। और जो नए लोग हैं वो अपनी पावर या अपनी सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करना शुरू कर देंगे। और यही चीज हम देखते हैं चोलास के साथ कि चोलास क्या है, चोलास में जो चोलास है दे वर द फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ पांड्यन डायनेस्टी। ये पांड्यन डायनेस्टी के फ्यूडल लॉर्ड्स रहते हैं। और इन्हीं के चोला डायनेस्टी के जो बेसिकली जो जिन्होंने स्टैब्लिश कर किया है चोला डायनेस्टी को, तो दैट पर्सन वाज नोन एज विजयालया, विजयालया चोला। और विजयालया ने क्या किया कि जो पल्लव डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था उसको रिप्लेस किया। पल्लव डायनेस्टी के लास्ट रूलर को चोला डायनेस्टी के विजयालय ने रिप्लेस किया। और उसके बाद इस पूरे जो ये पूरा एरिया देख रहे हैं आप, इस पूरे एरिया पे चोला डायनेस्टी की सुप्रीमेसी धीरे धीरे लेटर पे एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी है, राइट। अगर चोला डायनेस्टी की बात करें तो बेसिकली दे आर द फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ पांड्यन डायनेस्टी, राइट। अब जो आपके पल्लवास थे, इन्होंने जो अपनी कैपिटल है वो कहाँ पे बनाई थी, तो पल्लवा डायनेस्टी की जो कैपिटल थी दैट वाज कांचीपुरम। और लेटर फेजेस में हम देखते हैं कि जो ये चोलास है इनका, इन्होंने जो कैपिटल बनाया वो था आपका तंजावुर या थंजावुर, ठीक है। और थंजावुर में किस गॉडेस की लोग पूजा करते थे, तो निशुम्भशुंदनी निशुम्भशुंदनी का टेम्पल वहां पर बनाया। गॉडेस निशुम्भशुंदनी का जो मंदिर है वो बनवाया चोला जो किंग्स है उन्होंने। अब बेसिकली जो चोला डायनेस्टी है, चोला डायनेस्टी में हम 3 किंग्स के बारे में, वैसे तो बहुत सारे जो उसमें हुए हैं, इनमें भी बेसिकली 3 किंग्स के बारे में, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट वन, इनको हमें जानना जरूरी है। कौन कौन से, पहला है आपका विजयालय। विजयालय कौन है, जिसने चोला डायनेस्टी को क्या एस्टैब्लिश किया है। अगले हैं आपके राजेंद्र फर्स्ट और राजराज, राजराज, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, मैक्सिमम एरिया तक एक्सपेंशन किया है चोला डायनेस्टी का, इसलिए इनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे राजराज के बारे में कहते हैं वो द मोस्ट पावरफुल चोला किंग। और इसने क्या किया है कि मैक्सिमम एरिया पे इसने कंट्रोल किया है, दूर दूर तक फैलाया है। अब ना केवल इंडिया लेवल पे, अगर ना केवल इंडिया लेवल पे, इवन यहाँ से देखे तो श्रीलंका वाला जो रीजन है, इसके अलावा इधर जो इंडोनेशिया का रीजन है, वहां तक चोला डायनेस्टी को उसने क्या किया, एक्सपेंड किया। तो आपको चोला डायनेस्टी का जो पावर है वो केवल इंडिया में ही नहीं, श्रीलंका से लेके आपका इंडोनेशिया जितना भी पार्ट है वो सारा चोला डायनेस्टी के अंदर कवर होता था, राइट। तो अब जितना एरिया अगर किसी मतलब किसी किंग के अंडर इतना एरिया आएगा, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो उसका पावर होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा, राइट। तो इन्होंने क्या किया, अपने एरिया को इतनी दूर तक एक्सपेंड किया है। इसके अलावा एक जो किंग के बारे में हम पढ़ रहे थे वो है आपके राजराज और राजेंद्र। इन्होंने क्या किया है कि गंगई कोंड चोलपुरम टेम्पल को भी बिल्ड किया है, ठीक है। अब ये गंगई कोंड चोलपुरम जो टेम्पल है जिसको कहाँ बिल्ड किया गया, तो इन्होंने अपनी कैपिटल तंजावुर में गंगई कोंड चोलपुरम टेम्पल को बिल्ड किया है। और बेसिकली इस गंगई कोंड चोलपुरम का मतलब क्या था कि गंगई मतलब कि गंगा जो रिवर है दैट पर्टिकुलर रिवर इज फ्लोइंग इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो इफ समवन हैज कंट्रोल्ड द रिवर गंगा और the location which is nearby to river गंगा, that means कि गंगा नदी के किनारे को जीतने वाला राजा, और उसको सिंबलाइज करते हैं उसने तंजावुर में अपने इस टेम्पल को बनवाया। तो बेसिकली अगर टेम्पल इस तरीके से बन रहा था कि अगर कोई मतलब इफ यू हैव won a battle and you are constructing a temple, that means the significance of the temple is very very high, right। तो इसका मतलब ये है कि जो टेम्पल का सिग्निफिकेंस था उस टाइम पर वो बहुत ज्यादा रहा होगा। तो चोला डायनेस्टी के बारे में ऐसा कहते हैं कि इनके जो टेम्पल्स बने, बेसिकली पांड्या डायनेस्टी हो गई आपकी या राष्ट्रकूट हो गए, तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन बेसिकली सबने ही कराया है। लेकिन चोला डायनेस्टी के बारे में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी विक्ट्री को भी सिंबलाइज करने के लिए, अपने जब उनका एरिया एक्सपेंड होता था तो वो टेम्पल्स बनाया करते थे। तो कहीं ना कहीं जो टेम्पल्स है उनका रिलीजियस ज्यादा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी चोला डायनेस्टी में देखने को मिलता है। अब अगर टेम्पल्स की बात करें तो जो टेम्पल का ये वाला पार्ट होता है जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं विमान, राइट, विमान। और जहां से टेम्पल में आप एंटर करते हैं उस गेट को हम कहते हैं, गोपुरम, राइट। तो विमान एंड गोपुरम। अब चोला डायनेस्टी के टेम्पल की सबसे खास बात ये थी कि इनके समय में जो टेम्पल्स बनाए गए उसकी विमान और जो गोपुरम है उसकी हाइट बहुत ज्यादा होती थी, बहुत लंबे, बहुत ही ऊंचे हाइट के इन्होंने अपने विमान और गोपुरम बनाए हैं। जो कहीं ना कहीं सिंबलाइज क्या करता है, सिंबलाइज ये करता है, और दो चोला रूलर्स भी क्या है, सामंती ही फ्यूडल लॉर्ड्स है। लेकिन जब इस तरीके से टेम्पल बनते हैं और इतने हाइट के बनते थे तो ये सिंबलाइज करता था कि जहां तक ये जो ऊपर का पार्ट है दैट इज नोन एज कलश या आमलक, तो कलश का जो पार्ट है वो बहुत दूर तक के एरिया को, मतलब कि आप समझो कि अगर कोई बहुत ऊंची है टॉप पे, तो वो जितनी चीजें हैं दूर दूर वो सबको
क्या करेगी, जितनी दूर भी आप है उस मंदिर का जो टॉप है उसको देख पाएंगे कि मंदिर का जो हाइट है दैट वाज वेरी वेरी हाई, राइट। तो ये कहीं ना कहीं सिंपलाइज करता था कि जो किंग है जिसने इस एरिया को बनवाया है उसकी पहुंच भी उतनी ही दूर दूर तक है, उतना ही उसका जो कद है, जो उसका कहते हैं ना फिगरीन है, वो इतना ऊंचा है, इतना विशाल है कि वो उतने एरिया तक के लोगों को भी कवर किंग कर सकते। तो जो टेम्पल है इसके रिलीजियस से ज्यादा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस या सोशल सिग्निफिकेंस भी हम समझते हैं कि मतलब जो चोला टेम्पल्स है वो केवल और केवल रिलीजन को नहीं सिंबलाइज करते हैं, वो उस समय की सोसाइटी और उस समय का जो पॉलिटिक्स है उसको भी ये लोग कहीं ना कहीं सिंबलाइज करते हैं, राइट। अब इतने पैसे इनके पास कहाँ से आए, तो सबसे पहली बात कि जो चोला है इन्होंने धीरे धीरे करके अपने पूरे एरिया को आप देखो तो इतने लंबे एरिया को एक्सपेंड किया। इसके अलावा इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया और श्रीलंका तक भी पहुंच बनाई। तो ये जो एरिया था बेसिकली, ये वाला जो पूरा एरिया है चोलास का, ये जो एरिया है बहुत फर्टाइल लैंड है किसका, कावेरी का, राइट। कावेरी रिवर ने इस पूरे एरिया को एक फर्टाइल लैंड बना दिया है। तो जब यहाँ इस लैंड की फर्टिलिटी जाता थी, इस लैंड की फर्टिलिटी जाता थी, तो उनको क्या होता था कि इनको एक अच्छा रेवेन्यू मिल जाता था, ठीक है। इनको एक अच्छे उसमें रेवेन्यू मिल जाता था। जब रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता था तो उन्हीं पैसे का यूज करके जो किंग्स है या तो वो वॉर किया करते थे, यानी अपने एरिया को और एक्सपेंड करेंगे, या फिर क्या करेंगे, टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब जो ये ग्रांट देते थे, लैंड ग्रांट देते थे बेसिकली उस टाइम पे, तो लैंड ग्रांट का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ ऑफिशियल्स को, राइट। अब ऑफिशियल्स के अलावा लैंड ग्रांट किसको दी जाती थी, तो जैसे कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण ने इनका हवन करा दिया है ना, या मान लीजिए कि कोई जैसे उनको किसी देश से उन्होंने कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया, उसको उसका बिल पे करना था, तो इन सारी चीजों में भी लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, राइट। तो अब जब लैंड ग्रांट्स मतलब अपार्ट फ्रॉम द सैलरी दिए जाने लगे, तो इसका मतलब बहुत सारी कहीं ना कहीं जो कास्ट है, जो अदर कास्ट है अपार्ट फ्रॉम क्षत्रिय, उनके पास भी लैंड चला जाने लगा। तो यानी जो अब रूरल क्लास है, अब जो रूरल क्लास है वो क्षत्रिय के अलावा भी बहुत सारे रूरल किंग्स बन के आएंगे, मतलब दोज पीपल हु आर नॉट क्षत्रिय नाउ दे बिकेम अ न्यू रूलर ऑफ इंडिया, राइट। अब अगला है, अगला जो चोलास के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम द टेम्पल कंस्ट्रक्शन, द चोलास आर आल्सो नोन एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर द मेकिंग ऑफ द इमेजेस, द ब्रॉन्ज इमेजेस, राइट। तो ये ब्रॉन्ज इमेजेस जो चोला टाइम पे बनी है उनके लिए भी चोलास को हम जानते हैं। और बेसिकली जिस टेक्निक का यूज करके ये इमेजेस बनाते थे, दैट पर्टिकुलर टेक्निक वाज नोन एज लॉस्ट वैक्स टेक्निक, राइट। तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज करके बेसिकली जो चोला इमेजेस है वो बनाए गए हैं। और लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो टेक्निक होती है जब इससे कोई भी मतलब इमेजेस बन के आती है तो उनकी जो लस्टर होती है, जो चमक होती है वो बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो ये सारी चीजें भी जब हम अपना आर्ट एंड आर्किटेक्चर डील करेंगे देन वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज लॉस्ट वैक्स टेक्निक। बेसिकली व्हाट वी हैव टू नो कि जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक है बेसिकली वो इंट्रोड्यूस किसने की है, तो चोलास ने इंट्रोड्यूस की है, राइट। अब एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए क्या किया कि अब क्योंकि उनको जो मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन था वो इसी लैंड से या जो उपज होती थी, जो प्रोड्यूस होता था उसी से मिलता था। तो अब अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जो किसानों की प्रोडक्शन एग्रीकल्चर के में प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे कि चोलास ने सबसे ज्यादा काम किया है इरिगेशन में, ठीक है। इरिगेशन को रिच करने में, इरिगेशन को मतलब ब्रॉड करने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, राइट। तो अब क्योंकि कावेरी का तो डेल्टा था ही, कावेरी रिवर तो वहां पे सपोर्ट कर ही रही थी, और कावेरी रिवर के छोटे छोटे ब्रांचेस बनाकर उनको स्मॉल चैनल्स में जोड़ के पूरे से मतलब हर जगह से पूरे कहते हैं ना कि जो आपके नहर होते हैं, नहरों का पूरा जाल बिछा दिया गया था उस जगह पे, जिससे क्या हो गया कि जो वाटर स्कैरसिटी है वो वहां पे नहीं हो पाई। वाटर स्कैरसिटी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूस है वो बढ़ गया, और बेसिकली दे कल्टीवेट द राइस। और राइस के बारे में आपको पता है कि राइस के कल्टीवेशन में सबसे ज्यादा जो नीड होती है वो वाटर की ही होती है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ये लोग कैसे करते थे, तो बेसिकली जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और नाडु और वेलन, वेलन, राइट, वेलन। अब
और क्या था कि जहाँ पे छोटे छोटे पीजेंट्स रहते थे, स्मॉल पीजेंट्स जहाँ पे सेटल होते थे, उस पर्टिकुलर प्लेस को और कहते हैं, जैसे थंजावुर है ना, तो थंजावुर मतलब ये जहाँ पे छोटे छोटे पीजेंट्स रह रहे हैं उस पर्टिकुलर प्लेस को हम और कहेंगे। फिर जहाँ पे थोड़े से लार्जर फार्मर्स रहते हैं उसको नाडु कहते हैं, जैसे तमिलनाडु, आज का तमिलनाडु, राइट। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो मतलब जो थोड़ा सा अर्बनाइज सेक्शन था, वहाँ पे जस्टिस एंड कलेक्टिव टैक्स वगैरह ये सारा कुछ होता था। अब जो रिच पीजेंट्स है उनको कहते थे विल्लाल, ये जो है रिच पीजेंट्स है। अब इसके बाद ये जो है हो गया आपका कोरनाडु और वेल्लार। अब इसके अलावा जो चोला किंग्स हैं वो जो रिचेस्ट रिचेस्ट पीजेंट्स होंगे या जो रिचेस्ट उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होंगे उनको टाइटल दिया करते थे, जिसको कहते थे मुंदा विलन। मुंदा विलन, वो मुंदा विलन का ये टाइटल दिया करते थे। वैसे जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने टाइटल रूल किया था विक्रमादित्य, अशोका ने किया था प्रियदर्शनी का, तो सेम वे जो आपके चोला किंग्स थे वो क्या करते थे कि जो बड़े लैंड ओनर्स होते थे उनको ये टाइटल दिया करते थे मुंदा विलन का, मुंदा विलन का ये लोग जो है टाइटल दिया करते थे। अब इसके बाद हमने क्लासिफाई किया है, क्लासिफाई होता है टाइप्स ऑफ लैंड, हाउ मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंड आर देयर इन द चोला एम्पायर। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट कि जो बेसिकली चोला किंग्स है, उसके पहले हमने फ्यूडल लॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट समझा कि जब उनको सैलरी देने के लिए उनके पास इनफ अमाउंट में पैसे नहीं थे, तो दे हैव अवॉर्डेड एंड और दे हैव ग्रांटेड द लैंड पार्ट्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, बट अपार्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दे हैव ग्रांटेड द लैंड टू सम अदर पीपल आल्सो, someone like Brahmins, the school है ना, they wanted their masses to read, to study, so they have contributed in the making of schools, right, for the temple, for the development of temple they have granted land, right। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे जैन इंस्टीट्यूशंस को भी लैंड ग्रांट में दिए, राइट। तो इसको क्या कहेंगे कि अगर कोई पार्ट जहाँ जिस जिस पर्टिकुलर पार्ट को लैंड को ब्राह्मण्स को दे दिया जाता था उसको हम कहते थे वेल्लान वगई, राइट। तो यानी कि अब उसमें जो कंट्रोल है, जो उसका टैक्स कलेक्शन होगा वो ब्राह्मण करेगा, और ब्राह्मण करके वो जो अमाउंट होगा वो किंग को देगा, और उसके बाद उसी में से अपने लिए भी बचाएगा। ब्रह्मास दया क्या है, सॉरी वेल्लान में गई क्या है कि लैंड ग्रांट्स टू पीजेंट्स, और ब्रह्मदेय का क्या है कि जो लैंड हमने ब्राह्मण्स को दी थी दैट पर्टिकुलर लैंड वाज नोन एज ब्रह्मदेय। सवा भोग मतलब कि जब आपको स्कूल को ग्रांट आप कर रहे थे दैट पर्टिकुलर लैंड वाज नोन एज शाल भोगा। और उसके बाद देवदान, यानी कि अगर आपको टेम्पल कंस्ट्रक्ट कराने के लिए इफ यू आर अवॉर्डिंग और इफ यू आर रिवॉर्डिंग द लैंड दैट पर्टिकुलर लैंड वाज नोन एज देवदाना। और पल्ली चरणम क्या होता है कि इफ यू हैव ग्रांटेड द लैंड टू द जैन इंस्टीट्यूशन दैट पर्टिकुलर लैंड वाज नोन एज पल्ली चंद्रम, राइट। अब इसके अलावा तो बेसिकली ये हमने समझा किसके बारे में, ये हमने पूरा का पूरा जो समझा है वो दैट वाज अबाउट द चोला डायनेस्टी। अब इसके बाद जो आपका दिल्ली सुल्तान है, दिल्ली सुल्तान है, सुल्तान इसके बारे में जैसे कि हम अपना प्रीवियस डिस्कशन कर रहे थे कि वो उसकी शुरुआत होती है मोहम्मद गोरी के नेज़र से, कि जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया उसके बाद वो वापस रह जाते हैं कहाँ, मतलब जो प्लंडर करने आए थे वो आफ्टर लूटिंग द इंडिया ही रिटर्न बैक। तो जो उनका जो सिपह सलार होता है दैट इज मोहम्मद ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कर दिया आपके स्लेव डायनेस्टी। तो बेसिकली स्लेव डायनेस्टी इज द कहते हैं ना टच स्टोन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ पे जो शुरुआत होती है बेसिकली आपके दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। और लेटर फेजेस में क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मतलब वो हॉर्स या पोलो जो गेम होता है उसको खेल रहे होते हैं, और पोलो गेम खेलते वक्त ही इसकी डेथ हो जाती है, राइट। तो घोड़े से गिर के इसकी डेथ हो जाती है। तो इसको रिप्लेस जो करता है दैट पर्सन वाज नोन एज इल्तुतमिश, कि इल्तुतमिश ने इसको रिप्लेस किया, राइट। अब स्लेव डायनेस्टी के बारे में या कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहते हैं कि इसमें जो दिल्ली में आपका कुतुब मीनार है उसका फाउंडिंग स्टोन इसलिए ने रखा था, बट इसके टाइम फ्रेम में वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम फ्रेम में कुतुब मीनार कंप्लीट नहीं हो पाई थी और इसलिए डेथ हो जाती है। बेसिकली जो कुतुब मीनार बनाई गई है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा बख्तियार काकी की मेमोरी में बनाई थी। उसके बाद इल्तुतमिश उस पर काम शुरू करता है, और इल्तुतमिश भी कुतुब मीनार को पूरी नहीं बनवा पाते हैं। इल्तुतमिश को जो रिप्लेस करती है वो थी उसकी बेटी रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान के बारे में लोग मतलब ऐसा कहा जाता है कि रजिया सुल्तान वाज द ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर
वो अपने समय की पहली फीमेल मुस्लिम रूलर रही है। इसके अलावा भी अगर आप अदर टेक्स्ट देखें जैसे कि उसमें एक कश्मीर का टेक्स्ट है जिसमें की बात की जाती है आपकी रजिया सुल्तान के अलावा काकातिया डायनेस्टी की, जो काकातिया डायनेस्टी वारंगल की थी, उसमें रुद्रमा देवी नाम की एक लेडी रूलर का नाम आता है, राइट। इसके अलावा कश्मीर में रानी दिद्दा या दिद्दा मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट एल्डर सिस्टर तो उनको दीदी कहते हैं, तो सेम में दिद्दा यानी दीदी जो कंसेप्ट है जो कश्मीर की जो रहती है उसके बारे में बताया गया है। और इनके बारे में बताया किसने है, तो मिनहाज ए सिराज नाम का एक मतलब राइटर था जिसने की पहली बार ये सारी चीजों को प्रिंट डाउन किया है। तो मिनहाज और सिराज ने बहुत कुछ बताया है, उसने ये भी कहा है कि रजिया सुल्तान का टू होल्डिंग द थ्रोन, अगर रजिया सुल्तान जब थ्रोन होल्ड करें तो समवेयर शी वाज ब्रेकिंग द रूल व्हिच वाज मेड बाय अल्लाह और द गॉड। मतलब मिनहाज सिराज अपनी राइटिंग में ये बताता है कि क्योंकि रजिया सुल्तान हैज नो अथॉरिटी टू होल्ड द पोस्ट बिकॉज शी वाज द विमेन। तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी वो आपने क्या दिखा दी कि सोसाइटी का जो माइंडसेट है दैट वाज द पेट्रियार्कल माइंडसेट, है ना, कि अभी वहाँ पे फीमेल्स को इतना प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो जो मिनहाज सिराज में बताते हैं कि क्योंकि रजिया सुल्तान जैसी लेडी को थ्रोन होल्ड कर लेना तो कहीं ना कहीं जो अल्लाह का रूल है, गॉड हैज मेड द रूल कि दैट द वीमेन शुड बी सबऑर्डिनेट टू द मैन, दैट वाज अगेंस्ट द रूल, राइट। तो शी शुड नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये सारी चीजें मिनहाज सिराज बताते हैं। और इसी मिनहाज सिराज की जो राइटिंग उसके थ्रू हमें रुद्रमा देवी और दिद्दा का पता चलता है, राइट। अब इसके बाद जो डायनेस्टी जिसने आपकी स्लेव डायनेस्टी को रिप्लेस किया, दैट पर्टिकुलर डायनेस्टी वाज नोन एज खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी का जो फाउंडिंग मेंबर था दैट वाज जलालुद्दीन। और इस जलालुद्दीन को इनका जो भतीजा होता है, मतलब उनके भाई का बेटा होता है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का, इसने क्या किया, जलालुद्दीन को किल करते हैं और इंडिया में नई डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी को स्टैब्लिश करते हैं, राइट। अभी ये सारी डायनेस्टी भी आपके दिल्ली सुल्तान के अंडर ही आएंगी। अब खिलजी डायनेस्टी क्या है, कि खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम देखें तो आई गेस यू ऑल हैव सीन दैट पर्टिकुलर मूवी नेम पद्मावत। तो उसमें खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को पोर्ट्रे किया गया है, दैट वाज इन अ वेरी नेगेटिव सेंस। बट जब आप देखें तो खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारे रिफॉर्मेटिव काम भी किए हैं। जैसे कहते हैं कि कभी भी अलाउद्दीन के खिलजी के टाइम पे कभी भी अकाल नहीं पड़ता था, क्योंकि वो क्या करता था, एक निश्चित अमाउंट में कुछ प्रोड्यूस को अलग रखता था कि जब भी कभी अकाल आएगा तो वो उसी प्रोड्यूस का यूज करेंगे, राइट। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ये भी कहा जाता है कि he has the system of surveillance, कि सर्विलांस का उसके पास सिस्टम था कि जो लोग हैं वो मतलब जो भी ना गुप्तचर काइंड ऑफ जो आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले होते हैं इस तरीके का काम करके सारी क्लियर रिपोर्ट राजा को देंगे, यानी अलाउद्दीन खिलजी के पास वो सारी रिपोर्ट्स भी आती थी। इसके अलावा लैंड का भी एक्सपेंशन इसने किया, बहुत सारे दूर दूर तक जो है अपने एरिया को एक्सपेंड किया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बेसिकली जो खिलजी डायनेस्टी में दो ही किंग के बारे में हम जानते हैं। अगला जो डायनेस्टी थी दैट वाज तुगलक डायनेस्टी, और इस तुगलक डायनेस्टी में ही तिमूर जो है इन्वेजन करता है इंडिया, राइट। तिमूर का इन्वेजन होता है उस समय जो दिल्ली सल्तनत का शहनशाह या बादशाह या कह लीजिए कि सुल्तान था, दैट वाज मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे तिमूर का जो है आक्रमण होता है इंडिया में। तुगलक के बाद जो अगली डायनेस्टी थी दैट वाज सैयद, एंड सैयद के बाद लोधी। तो क्वेश्चन आता है कि भाई हमें तुगलक या दिल्ली सल्तनत के बारे में पता कैसे चलता है, हाउ वी गेट टू नो और गॉट टू नो अबाउट द दिल्ली सुल्तान, राइट। तो इनके बारे में जिस चीज से हमें पता चलता है उसको तवारीख या तारीख कहते हैं। तो तारीख या तवारीख क्या था, कि जो किंग्स होते थे, किंग्स अपने बारे में चीजों को लिखाया करते थे, इंस्क्राइब कराया करते थे, और जो पर्सन वो करते थे वो दे वर वेरी वेरी लर्न पर्सन, right, so they write मतलब they were actually learned men, so basically they were the secretaries or the administrator or the poets or the courtiers, है ना, or the king। तो ये क्या करते थे, जो भी बादशाह के जो भी इवेंट्स हुआ करते थे, जो रूल बनाया करते थे, तो उसके बारे में एडवाइस लेकिन वो सारी चीजों को तवारीख में लिखा करते थे, और उन्हीं तवारीख के थ्रू में उस टाइम के किंग्स के बारे में पता चलता है, राइट। अब ये लोग ऐसा क्यों करते थे, तो ये लोग ऐसा इसलिए करते थे, मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं ये लोग क्यों लिखते थे, तो बेसिकली दे वांटेड कि मतलब किंग खुश हो जाएगा तो मेरे को भी जमीन का कुछ टुकड़ा दे देगा, कुछ भाग दे देगा, तो आई ऑल्सो बिकेम द पावरफुल वन, है ना। तो इसी जो है कहते हैं अल्योरमेंट में वो लोग इनकी जो विक्ट्रीज होती थी उनको दो चार बढ़ा के भी कहीं ना कहीं पेन डाउन कर दिया करते थे। उन्हीं के थ्रू हमें जो है दिल्ली सुल्तान के बारे में पता चलता है। अब आ जाते हैं हम द सिस्टम ऑफ
मतलब how the system of administration has been performed in Delhi Sultan's period. तो बेसिकली जो इल्तुतमिश का टाइम है, इल्तुतमिश ने भी वो जो हमने भी फ्यूडल लॉ का कंसेप्ट समझा, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता जो कंसेप्ट है वो इल्तुतमिश का है। और सिस्टम को हम कहते हैं इक्ता सिस्टम, राइट? कि मतलब जो है थोड़े थोड़े लैंड पे, जैसे मान लीजिए कि ये इल्तुतमिश का यहाँ पे वो सेंटर में बैठा है, तो जो उसकी सबऑर्डिनेट है वहाँ पे उसने थोड़े थोड़े से मतलब जैसे अभी हमारे प्रोविंसेस होते हैं, सेम वे इसने थोड़ी थोड़ी जगह को कवर करके इसको बना दिया इक्ता, है ना? और हर एक इक्ते में जो पर्सन अपॉइंट होगा उसको कहते थे इक्तेदार, राइट? अब ये इक्तेदार क्या करेगा, इस पर्टिकुलर जगह से जो भी टैक्स होगा उसका कलेक्शन करेगा, उसके बाद वो निश्चित अमाउंट में किंग तक पहुंचाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो उसको अपने पास रखेगा। अब बाद में हमने देखा कि फ्यूडल लॉर्ड्स जैसे चोलास टाइम में क्या उन्होंने अपने आप को फ्री कर लिया और वो नए किंगडम बन गए। लेकिन इल्तुतमिश के टाइम पे क्या था कि ही हैज मेड दिस पोस्ट ट्रांसफरेबल, है ना? कि कोई भी इक्तेदार एक लंबे समय तक या लगातार किसी एक जगह का इक्तेदार नहीं रह सकता, तो वो जो है ट्रांसफर होता रहेगा। अब इससे क्या होता था कि जब ट्रांसफर होगा तो कभी भी किसी इक्तेदार की एक ही जगह पे कार्टिलाइजेशन एंड मोनोपोली नहीं हो पाएगी। तो जो हमने लिटरेचर में देखा कि ये फ्यूडल लॉर्ड का कंसेप्ट है, तो वो कंसेप्ट भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट? तो वो उसने क्या किया कि इक्तेदार की पोस्ट को रोटेशनरी बना दिया, ट्रांसफर करने लगा, राइट? अब बेसिकली यहाँ पे एक आपका कंपैरिजन दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दिल्ली पे अटैक किया है, उसने जो है बहुत सारे गैरिसन टाउन्स को बनाए। गैरिसन टाउन मतलब जैसे कि आपका फतेहपुर, आपका सीरी जो जगह है, सीरी जगह को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है, राइट? अब उसने उसके टाइम पे कभी भी अकाल नहीं पड़ा है, क्योंकि उसने प्रॉपर वे में मतलब जो राशन है, जो चीजें उनको स्टोर करने की बात करी थी। अब ये क्या करता था, ये सैलरीज देता था सोल्जर्स को, ये सैलरी दिया करता था, राइट? rather than एकता, यानी जमीन की जगह जैसे इल्तुतमिश क्या करते थे कि आपको एकता दे देते थे, उस जगह के आप इक्तेदार हो जाएंगे। लेकिन अलाउद्दीन ने सीधी सीधी सैलरी देने का काम शुरू किया था, राइट? अगर उसी समय आप मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम देखो तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ऐसा कहा जाता है दैट ही वाज द मोस्ट लर्नड पर्सन ऑफ हिज टाइम। वो अपने समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी इनके साथ कि इनकी कुछ पॉलिसी रहती थी जिसकी वजह से इसको आज के टाइम में बहुत अच्छा किंग नहीं माना जाता है, राइट? अब इन्होंने क्या किया था, जैसे इससे क्या किया कि अपनी जो कैपिटल है वो दिल्ली में थी, इनकी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया करता है ये दौलताबाद के लिए। अब इस समय जब इसने कैपिटल की शिफ्टिंग की थी तो वैसे ही लोग बहुत परेशान थे फॉर द फूड, क्योंकि मतलब बहुत सिचुएशन वाज नॉट वेरी वेरी गुड और अंडर कंट्रोल। तो उस समय जो है दिल्ली से दौलताबाद को कैपिटल में शिफ्ट करते, बिकॉज ये क्या था कि इंडिया में उस समय जो मंगोल थे उनका जो आक्रमण था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। तो इनसे बचने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को ये लगता है कि व्हाई शुड नॉट आई चेंज माय कैपिटल, और तो वो थोड़े समय के लिए करते हैं, उसके बाद फिर से उनको अपनी कैपिटल दिल्ली शिफ्ट करनी पड़ जाती है, तो इन्हीं सब के बीच में उसका बहुत सारा रेवेन्यू तो वैसे भी नहीं मिल रहा था, और जो रेवेन्यू उसके पास था वो भी उसका इन्हीं सारी चीजों में जा रहा था। तो अब और डेफिसिट का प्रॉब्लम आ गया। दूसरा क्या था कि इसने टोकन करेंसी लॉन्च की। व्हाट वाज दैट? कि इनके पास पैसे नहीं थे, है ना, गोल्ड वगैरह नहीं था। अब ये क्या करेंगे कि टोकन करेंसी लॉन्च कर देगा कि भाई चलो सस्ते में कम लागत में बनने वाला टोकन करेंसी। अब इस टोकन करेंसी के साथ प्रॉब्लम क्या होगा कि इस टोकन करेंसी की हो गई काउंटर फिटिंग। अब जब काउंटर फिटिंग हो गई तो इसने क्या किया, एक मैनिपुलेटिव इन्फ्लेशन ला दिया मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम। तो अब जब मैनिपुलेटिव इन्फ्लेशन आ गया तो अब इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था, राइट? तो ऐसे में हम देखते हैं कि फिर जो मतलब जो बिल्डिंग पे खर्चा हो गया या जो हेरिटेज पे या जो वेलफेयर के लिए इनको बेसिकली मेजर्स लगते हैं, उसके पास उसके लिए इनके पास पैसे नहीं बचते। तो इसी सब में मोहम्मद बिन तुगलक को रिप्लेस करता है फिरोज शाह तुगलक, और इसके बाद तुगलक डायनेस्टी इंडिया से खत्म हो जाती है। आज की जो डायनेस्टी थी वो सैयद डायनेस्टी थी, और सैयद डायनेस्टी के बारे में कहते हैं कि जब मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम तिमूर इंडिया है तो तिमूर का ही पार्ट था सैयद डायनेस्टी, राइट? तो सैयद डायनेस्टी वाज नॉट बट द पार्ट ऑफ तिमूर, राइट? उसके बाद फिर उनको रिप्लेस किया सैयद डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी में। और जो लोधी थे उनका जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ज्यादा नहीं रहता, लोधी का जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ज्यादा नहीं था। इनका जो लास्ट रूलर था वो रूलर थे आपके इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट में इब्राहिम लोधी का एक भाई दौलत खान लोधी और राणा सांगा इन दोनों ने इनवाइट किया किसको, बाबर को। फिर बाबर को मौका मिल जाता, वो बहुत दिनों से तलाश में था कि वो इंडिया कैसे जाए। इन दोनों ने इसको मौका दिया, इन दोनों ने मौका दिया, और उसके बाद फिर वो आते हैं, बाबर आता है, और बाबर और इब्राहिम लोधी का फिर वो बैटल होता है, एंड दैट पर्टिकुलर बैटल वाज नोन एज बैटल ऑफ पानीपत इन 1526।
और इसके बाद इंडिया में बाबर एक नई डायनेस्टी की शुरुआत करेगा, और दैट पर्टिकुलर डायनेस्टी वाज नोन एज मुगल डायनेस्टी। तो बेसिकली जो दिल्ली सल्तनत है वो इब्राहिम लोदी के साथ खत्म हो जाता है और उसकी शुरुआत होती है आगे कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ, राइट। तो आज की क्लास में हमने चैप्टर 2 समझा, जिसमें हमने चैप्टर 2 से कंटिन्यू किया चोला डायनेस्टी से लेके आके दिल्ली सल्तनत के बारे में आज की क्लास में हमने समझा है, राइट। तो आगे की क्लासेस में आगे के चैप्टर्स के बारे में आपसे बात करेंगे, राइट। तो आज की क्लास में बस यही था। थैंक यू सो मच गाइस।